Children, today I am going to tell you how can we prove that root 5 is irrational. This is question number 1 of exercise 1.3. So we will be learning how can we prove that root 5 is irrational. Children, in mathematics, there are so many things which cannot be proved directly. उनको प्रूव करने के लिए we use the method of contradiction. They are proved by the method of contradiction. Now, what is the method of contradiction? In the method of contradiction, जो चीज़ हमने प्रूव करनी होती है हम उसका ऑपोजिट एज्यूम करते हैं. लाइक सी, मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया है. लेट अस एज्यूम ऑन द कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 इज रैशनल. We have to prove that it is irrational. हमने assume किया it is rational. कई बच्चे ये गड़बड़ कर जाते हैं कि वो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं let us assume that root 5 is irrational. Let me tell you children, अगर आपने ये करा तो आपका क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाएगा. It will end there and then. आपके नेक्स्ट स्टेप्स का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा. Because you wanted to prove it is irrational. आपने एज्यूम कर लिया इट इज इरेशनल. खत्म, ओवर. सो बी केयरफुल व्हेन यू स्टार्ट. यू हैव टू राइट लाइक दिस. लेट अस एज्यूम ऑन द कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 इज रैशनल. एंड चिल्ड्रन, फिर इसका आगे का एल्गोरिदम आई एम गोइंग टू टेल यू. ये जो स्टेप्स हैं मैथमेटिक्स के, ये आगे पीछे नहीं हो सकते बिकॉज हर स्टेप अब नेक्स्ट स्टेप जो है पिछले स्टेप से कनेक्टेड है. सो यू कैन नॉट राइट एनीथिंग एनीवेयर. यू हैव टू मूव लाइक दिस ओनली. सो व्हेन वी एज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल, आवर नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट डू वी राइट? सो लेट रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन q, बिकॉज यू नो rational numbers can be expressed in the form of p by q. And here this is also very important. We have written where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0. This thing you already know about rational number. I would like to tell you about co-prime. What is the meaning of co-prime? Simple language में बोले तो ये standard form में है, cancel हुआ हुआ है, यानी कि p और q के कोई common factors नहीं है. जिनके कोई common factors नहीं होते they are known as co-primes. Children, here I want to make one thing very very clear कि को प्राइम का प्राइम से कुछ लेना देना नहीं है. When we say these two numbers are co-prime, maybe both of them are prime, maybe one of them is prime, maybe both of them are not primes. For example, when I say 3 upon 5, 3 upon 5 are co-prime क्योंकि दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते. अगर 3 और 5 हो, they will be co-prime integers, 3 and 5, क्योंकि दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते और दोनों प्राइम भी हैं. इफ आई से 5 and 18, अब इसमें 5 इज अ प्राइम नंबर, 18 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बट टुगेदर 5 and 18 आर को प्राइम्स. वी कैन ऑल्सो से 6 and 25. Here neither 6 is a prime number nor 25 is a prime number, but together they are co-prime. Why? Because दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते. तो co-prime मतलब जिनका कोई common factor ना हो, किसी एक टेबल में वो ना आए. Okay, so first step we have assumed that it is rational. Second step, it is equal to p upon q, where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0. Now what is the next step? Next step, we square both the sides. Squaring both sides we get, when you square root 5 you get 5, and when you square this side, right hand side, you get p square upon q square. Now q square is taken to this side, it becomes 5q square is equal to p square. I have given it number 1. I'll tell you later why I have given it number 1, because we require it later. Okay. After that, I have written q square is equal to p square upon 5. Now this thing I would like to make very very clear to you children. What is this p square upon 5? If you see, I have written this shows that 5 divides p square.
क्या मतलब इस बात का? Children, we have assumed that Q is an integer. We have written P and Q both are co-prime integers. आप पर वैसे दोनों co-prime है, otherwise they are integers. So when we perform certain division, we are dividing P square by 5 and we are getting Q square. Q square मतलब integer. Integer मतलब कोई decimal वाला नंबर नहीं. आपको मालूम है integer तक कभी भी decimals नहीं आते. तो एक इंटीजर अगर आपका आंसर में आता है, इसका मतलब ये है कि परफेक्टली डिवाइड हो रहा है. 5 इज परफेक्टली डिवाइडिंग पी स्क्वायर, यानी कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर. कंप्लीटली डिवाइड करता है. जब ये दोनों डिवाइड होंगे तो रिमाइंडर 0 बच रहा होगा. सो देन ओनली द आंसर कैन बी एन इंटीजर. अदरवाइज पॉइंट्स में आता है. अगर वो पूरा उसका फैक्टर ना हो तो वो पॉइंट्स में आंसर देगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 18 को 5 से डिवाइड करो तो आपका आंसर पॉइंट्स में आएगा, क्योंकि 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 18. लेकिन यही आप 15 को 5 से डिवाइड करो तो आपका आंसर एक इंटीजर आएगा, 3 आएगा. ठीक है. तो व्हेन यू आर गेटिंग इंटीजर एज आंसर, दिस मीन ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है. दिस आई हैव रिटन, दिस शोज दैट 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर. तो अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो. एंड वी हैव रिटन द थ्योरम हियर कि अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इट डिवाइड्स ए ऑल्सो. ठीक है. नाउ आई हैव मार्क्ड इट एज नंबर 2. तो फर्स्ट स्टेप वी हैव एज्यूम्ड इट रैशनल, देन वी हैव टेकन इट एज पी बाई क्यू एंड देन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट दिस रिजल्ट. दिस रिजल्ट शोज अस कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर. ठीक है. एंड 5 इज अ फैक्टर ऑफ p also. It divides p also. Divides मतलब completely divides. After that the next step comes, क्योंकि उसको completely divide कर देता है p को. पहले we were talking about p square. Now हम p पे आ गए हैं. तो हमने लिखा है like p upon 5 is equal to c. Now what is the c? Where c is any integer. Okay. Now p upon 5 we have taken at c as c. Now again we will do squaring both sides. Again पहले यहाँ किया, अब यहाँ भी करेंगे. Squaring both sides we get, when you square this you get p square upon 25 and here you get c square. Okay. Now I have written 5q square upon 25 is equal to c square. ये मैंने कहाँ से लिखा? ये मैंने पी स्क्वायर की वैल्यू लिया. एज आई टोल्ड यू, ये मैंने आपको बोला था, इसको मैंने नंबर 1 मार्क किया. दिस इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर. 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर. सो दैट इज वाई आई हैव रिटन कि फ्रॉम 1 आई हैव टेकन दिस इन द प्लेस ऑफ पी स्क्वायर आई हैव रिटन 5q स्क्वायर. ठीक है. एंड आफ्टर दैट आई विल कैंसिल इट. व्हेन आई कैंसिल इट आई गेट q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर. ध्यान से इस चीज को देखो. q square is being divided by 5, we get c square. Okay. See, here I have written q square upon 5 is equal to c square. Now what is this thing showing us? Again, q square is being divided by 5 and we are getting c square. What was c? C was an integer. When we get integer as our answer? When 5 is a factor of q square. ये उसको completely divide कर रहा है, इसी वजह से आपका आंसर एक इंटीजर आ रहा है. इससे हमें ये पता लग रहा है what does this shows? This shows 5 divides q square. 5 q square को भी डिवाइड कर लेता है. तो अगर 5 q square को भी डिवाइड करता है तो 5 q को भी डिवाइड करेगा. दिस आई हैव रिटन रीजन सेम एज अबव. जो हमने ऊपर रीजन लिखा था वही रीजन यहाँ पे जो आपने ये वाला रीजन लिखा था, दिस रीजन अगेन अप्लाइज हियर ऑल्सो. ओके. नाउ फ्रॉम 2 and 3 we get, what was 2? See, 2 was 5 divides p. 5p को डिवाइड कर देता है, यानी 5 is a factor of p. And 3 says 5 divides q. इसका मतलब 5q को भी डिवाइड कर देता है, यानी 5 जो है p और q दोनों का कॉमन फैक्टर है. फ्रॉम 2 and 3 we get 5 divides both p and q. So therefore 5 is a common factor of p and q. तो अगर ये कॉमन फैक्टर है
तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब ये हमारी उस बात को गलत कर रहा है। कौन सी बात? आपने यहाँ पर एज्यूम किया हुआ है कि P and Q आर को प्राइम इंटीजर्स। आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ को प्राइम इज जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हुए आ रहे हैं वी गेट कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q। तो ये हमारी बात गलत हो जाती है। तो चिल्ड्रन हम इसी चीज़ की वेट कर रहे होते हैं कि वट एवर वी आर डूइंग उसमें कुछ जब भी गड़बड़ आ जाती है तो दैट मीन्स हम वहीं पर कह देते हैं कि हमारी अजम्पशन इज़ रॉन्ग। ये जो गड़बड़ आती है बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशन आती है। तो हम जैसे हम सॉल्व करते हुए आए वी सॉ कि 5 कॉमन फैक्टर हो गया P and Q का, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, गलत हो गया। तो हमने लिखा दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। कौन सी अजम्पशन? कि P and Q आर को प्राइम इंटीजर्स। तो अगर हमारी अजम्पशन को इस बात ने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया दिस मीन्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और अगर हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी तो हमारी शुरुआत की अजम्पशन क्या थी? हमने एज्यूम किया था √5 इज रैशनल। अगर ये हमारी अजम्पशन रॉन्ग हम बोल देते हैं तो क्योंकि इसी की वजह से ये हुआ था, तो अगर एजम्पशन ही रॉन्ग हो गई तो ये बात भी रॉन्ग हो गई। इसका मतलब ये बात प्रूव हो गई कि √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ओके चिल्ड्रन।